آخری جنازہ۔ ضلع خیرپور سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نورپور۔ یہ گاؤں عام دیہات کی طرح تھا، کھیت، کچے گھر، ایک پرانی مسجد اور گاؤں کے آخر میں ایک قدیم قبرستان۔ مگر اس گاؤں کی ایک بات پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ہر جمعرات کی رات بالکل 12:07 پر قبرستان سے ایک جنازہ نکلتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، اس دن گاؤں میں کوئی مرتا نہیں تھا، پھر بھی 4 آدمی جنازہ اٹھاتے ہوئے ان کے پیچھے سفید کپڑوں میں خاموش لوگ چل رہے ہوتے۔ نہ کوئی بات کرتا، نہ روتا، نہ قرآن کی آواز، صرف قدموں کی چاپ اور ہوا کی سرد سیٹی۔ یہ بات صرف کہانی نہیں تھی، پورے گاؤں کے لوگ اس وقت اپنے دروازے بند کر لیتے، کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیتے تھے اور بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا تھا 12:07 کے بعد کھڑکی سے باہر مت دیکھنا۔ شہر سے آیا ہوا فہد ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر چند دن کے لیے آیا تھا۔ پہلی رات اس نے یہ قصہ سنا اور ہنس کے بولا، اگر واقعی جنازہ نکلتا ہے تو میں خود دیکھوں گا۔ ماموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، بیٹا دیکھ لینا، مگر یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ فہد نے پوچھا، کون سی غلطی؟ ماموں نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولے، اگر جنازہ تمہارے گھر کے سامنے رک جائے تو دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ جمعرات آ گئی۔ رات کے 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ پورا گاؤں غیر معمولی خاموش تھا۔ نہ کتے بھونک رہے تھے، نہ کسی کے گھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں سانس روک کر کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 12:07 دور قبرستان کی طرف سے کسی کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آنے لگی۔ فہد نے کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹایا۔ چاندنی میں 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے آ رہے تھے۔ سب نے سفید کفن جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن ان کے قدموں کی رفتار عجیب تھی۔ سب ایک ساتھ چل رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں ایک ہی رفتار پر باندھ دیا ہو۔ جنازہ آہستہ آہستہ گلی سے گزرا۔ فہد نے غور کیا، کفن پہ کوئی نام نہیں لکھا تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دعا، نہ کوئی امام، بس خاموشی۔ اچانک جنازہ چلتے چلتے رک گیا، بالکل فہد کے گھر کے سامنے۔ فہد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے 4 آدمیوں نے ایک ساتھ اپنا سر اٹھایا اور سیدھا فہد کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ حالانکہ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، انہیں نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فہد نے فوراً پردہ چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی دروازے پہ 3 ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر باہر سے ایک بوڑھی آواز آئی، جنازے کو ایک کندھا کم ہے، بس 4 قدم ساتھ چلو۔ فہد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ یہ آواز اس کے مرحوم دادا کی تھی، جنہیں مرے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ فہد کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دروازے کے باہر وہی آواز دوبارہ آئی، دروازہ مت کھولو، صرف ایک کندھا دے دو۔ فہد کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ یہ آواز بالکل اس کے مرحوم دادا جیسی تھی، وہی لہجہ، وہی آہستہ بولنے کا انداز، وہی کھانسی۔ مگر اس کے دادا کو انتقال کیے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ اسی لمحے گھر کے دوسرے کمرے سے ماموں کی آواز آئی، فہد جو بھی آواز سنو کوئی جواب مت دینا۔ مگر دروازے کے باہر خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحے گزر گئے، کوئی دستک نہیں، کوئی آواز نہیں۔ فہد نے ہمت کر کے کھڑکی کے پردے کے کونے سے باہر دیکھا۔ گلی خالی تھی، جنازہ جا چکا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے سامنے گیلی مٹی پر 5 قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ فہد نے دوبارہ گنا، 1 2 3 4 5۔ حالانکہ جنازہ تو 4 آدمی اٹھائے ہوئے تھے، 5واں کون تھا؟ صبح ہوتے ہی فہد نے یہ بات ماموں کو بتائی۔ ماموں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً گھر کے باہر جا کر قدموں کے نشان دیکھے۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، اب یہ تمہیں دیکھ چکا ہے۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، کون؟ ماموں نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، آج شام مغرب سے پہلے قبرستان چلنا ہوگا۔ قبرستان گاؤں سے تھوڑا دور تھا۔ وہاں ایک نہایت بوڑھا قبرستان کا رکھوالا رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا سلیم کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ 50 سال سے اسی قبرستان میں رہ رہا ہے۔ بابا سلیم نے فہد کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بدل گئی۔ اس نے بغیر سلام کے پوچھا، کل رات تم نے پردہ اٹھایا تھا؟ فہد چونک گیا، آپ کو کیسے معلوم؟ بابا سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے قبرستان کے ایک پرانے حصے میں لے گیا۔ وہاں درجنوں بے نام قبریں تھیں، نہ کتبہ، نہ تاریخ، صرف خاموش مٹی۔
बाबा सलीम एक कब्र के सामने रुक गया। हर साल सिर्फ एक शख्स गलती करता है, वो जनाजे को देख लेता है या उसकी आवाज़ का जवाब दे देता है। फहद ने जल्दी से कहा, मैंने तो जवाब नहीं दिया। बाबा सलीम ने उसकी तरफ देखा। जवाब ज़बान से नहीं, नज़र से भी दिया जाता है। फहद के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। बाबा सलीम ने कब्र की मिट्टी हटाई। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दबी हुई थी। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, 5वां कंधा हमेशा जिंदा आदमी देता है। फहद ने हैरत से पूछा, इसका क्या मतलब है? बाबा सलीम ने गहरी सांस ली। 4 कंधे उन लोगों के होते हैं जो बरसों पहले मर चुके होते हैं, और 5वां वो हमेशा किसी जिंदा इंसान का होता है जिसे जनाजा खुद चुनता है। फहद ने बेइख्तियार कहा, अगर वो इनकार कर दे तो? बाबा सलीम की आंखें भर आईं। आज तक जिसने इनकार किया वो अगली जुमेरात तक जिंदा नहीं रहा। ये सुनते ही फहद के हाथ से पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। उसी लम्हे कब्रिस्तान के दूसरी तरफ से जनाजे की दुआ की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। हालांकि अभी सूरज गुरूब भी नहीं हुआ था। तीनों ने एक साथ आवाज़ की तरफ देखा। दूर कब्रों के दरमियान 4 सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आदमी खामोशी से खड़े थे और उनके दरमियान एक खाली जनाजा रखा था, जैसे वो 5वें कंधे का इंतजार कर रहे हों। कब्रिस्तान में शाम तेजी से उतर रही थी। फहद, उसके मामू और बाबा सलीम की नज़रें उस खाली जनाजे पे जमी हुई थी। चारों सफ़ेद लिबास वाले आदमी 1 इंच भी नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस भी नहीं ले रहे हैं। हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते भी हिल रहे थे, मगर उनके कपड़ों का एक कोना भी हरकत नहीं कर रहा था। फहद ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक बाबा सलीम ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। रुक जाओ। फहद चौंक गया। क्या हुआ? बाबा सलीम की नज़रें जनाजे पर थी। ये लोग खुद नहीं चलते, इन्हें बुलाया जाता है। चंद लम्हे बाद चारों आदमियों ने एक साथ जनाजा ज़मीन पर रख दिया। पूरे कब्रिस्तान में ऐसी खामोशी फैल गई कि दूर कहीं झींगर की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर कफन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ हिलने लगी। फहद के गले से आवाज़ ना निकली। कफन के ऊपर कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। फिर एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। वो किसी बूढ़े की आवाज़ नहीं थी, ना किसी बच्चे की। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। बाबा सलीम ने फ़ौरन अपनी जेब से तस्बीह निकाली और आहिस्ता आहिस्ता जिक्र पढ़ने लगा। चारों सफ़ेद लिबास वाले आदमी एक साथ फहद की तरफ मुड़े। उनके चेहरे अभी भी कपड़े से ढके हुए थे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सब सिर्फ फहद को देख रहे हों। अचानक कफन के ऊपर से एक हाथ बाहर आया। लंबी उंगलियां, स्याह नाखून और मिट्टी से भरा हुआ हाथ। उसने आहिस्ता आहिस्ता कफन का किनारा पकड़ा और ऊपर उठाना शुरू कर दिया। फहद की सांसें रुक गई। अगर कफन खुल गया तो अंदर क्या होगा? उसी लम्हे बाबा सलीम जोर से बोला, आंखें नीचे करो। फहद ने फौरन नजरें झुका ली। चंद लम्हों बाद एक ऐसी चीख कब्रिस्तान में गूंजी जैसे दर्जनों लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे हों। दरख्तों पर बैठे तमाम परिंदे एकदम उड़ गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया। बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, आप देख सकते हो। फहद ने नजरें उठाई। जनाजा गायब था। चारों आदमी भी गायब थे। सिर्फ ज़मीन पर एक सफ़ेद कफन पड़ा था, मगर वो खाली नहीं था। उसके अंदर किसी इंसान का जिस्म साफ नज़र आ रहा था। फहद ने कपकपाती आवाज़ में पूछा, ये कौन है? बाबा सलीम ने जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, कफन का एक किनारा पकड़ा और उसे उठा दिया। फहद ने जैसे ही अंदर देखा, उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। कफन के अंदर फहद खुद लेटा हुआ था। उसका चेहरा सर्द था, आंखें बंद थी और सीने पे वही घड़ी रखी थी जो उसने सुबह अपने हाथ पर बांधी थी। फहद खौफ से पीछे हट गया। ये कैसे मुमकिन है? उसी लम्हे कफन में पड़े हुए फहद की बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं और उसने मुस्कुराकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगली जुमेरात मेरा जनाजा तुम उठाओगे। फहद खौफ के मारे पीछे हट गया। उसने दोबारा कफन की तरफ नहीं देखा, मगर अब वहाँ कोई लाश नहीं थी, सिर्फ खाली सफ़ेद कफन जो ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे चंद लम्हे पहले जो कुछ उसने देखा वो हकीकत था या महज एक डरावना मंजिर। वो खुद फैसला ना कर सका। बाबा सलीम ने फ़ौरन फहद का हाथ पकड़ा। चलो, या एक लम्हा भी रुकना ठीक नहीं। तीनों तेज़ी से कब्रिस्तान से निकलने लगे, मगर अभी वो मरकज़ी दरवाजे तक पहुँचे भी नहीं थे कि लोहे का पुराना दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरा कब्रिस्तान लर्ज़ उठा।
हवा यकदम रुक गई। हर तरफ ऐसी खामोशी फैल गई जैसे दुनिया की हर आवाज़ खत्म हो चुकी हो। अचानक कब्रिस्तान की तमाम कब्रों के दरमियान जलती हुई मिट्टी के चिराग एक एक करके रोशन होने लगे। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चंद ही लम्हों में सैकड़ों चिराग जल उठे। बाबा सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कपकपाती आवाज़ में बोला, ये पहली बार है उसने खुद को जगा लिया है। फहद ने पूछा, कौन? बाबा सलीम ने जवाब देने के बजाय कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। वो कब्र बाकी सब कब्रों से मुख्तलिफ थी। उस पर कोई नाम नहीं था, ना तारीख, सिर्फ एक जुमला पत्थर पे लिखा था, उससे कभी मत जगाना। उसी लम्हे कब्र की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फहद और उसके मामू चंद कदम पीछे हट गए। मिट्टी फटने लगी और फिर एक स्याह धुआं कब्र से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हुआ। धुआं इंसान की शक्ल इख्तियार करता गया। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दो सुर्ख आंखें जो अंधेरे में जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। हवा में एक ऐसी बदबू फैल गई जैसे बरसों पुरानी बंद कब्रें एक साथ खुल गई हों। बाबा सलीम ने लरजती आवाज़ में कहा, ये वो जिन है जिसने इस कब्रिस्तान को अपनी पनागाह बनाया था। हर जुमेरात ये एक नई रूह का मुतालबा करता है और अगर इसे रूह ना मिले तो वो अपना जनाजा खुद निकालता है। फहद का गला खुश्क हो गया। तो फिर इसे रोकता कोई क्यों नहीं? बाबा सलीम की आंखों में नमी आ गई। कोशिश की थी, बहुत लोगों ने की थी, कोई वापस नहीं आया। उसी लम्हे वो स्याह साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, कब्रिस्तान के तमाम चिराग एक एक करके बुझने लगे। आखिर में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। वो फहद के कदमों के पास रखा था। साए ने पहली बार आवाज़ निकाली। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे हों। 5वां कंधा मिल गया, अब आखिरी जनाजा मुकम्मल होगा। उसी लम्हे फहद के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। उसने फौरन पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर उसकी कमीज के कंधे पर मिट्टी से बनी हुई 5 उंगलियों का वाज़ेह निशान मौजूद था। बाबा सलीम ने वो निशान देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, इसने तुम्हें चुन लिया। बाबा सलीम की आवाज़ कांप रही थी। फहद, अब वक्त बहुत कम है। फहद ने अपने कंधे पर लगी मिट्टी के निशान को देखा। वो आम मिट्टी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हो। चंद ही लम्हों में वो निशान उसके गर्दन तक पहुंच गया। फहद ने घबरा कर उसे झाड़ा, मगर निशान मिटने के बजाय और गहरा हो गया। अचानक कब्रिस्तान के तमाम चिराग एक साथ बुझ गए। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर वो स्याह साया सुर्ख आंखों के साथ खड़ा था। फिर उसने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद किया। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी, फिर दर्जनों कब्रों की मिट्टी फटने लगी। फहद और उसके मामू खौफ से पीछे हट गए। कब्रों से लाशें निकलने लगी, बल्कि सफ़ेद कफनों में लिपटे हुए वजूद खामोशी से बाहर खड़े होने लगे। किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सबके चेहरे झुके हुए थे। बाबा सलीम की आंखों में आंसू बहने लगे। ये वो लोग हैं जो बरसों पहले आखिरी जनाजे के पीछे चल पड़े थे। 1, 2, 10, 20, फिर पूरा कब्रिस्तान सफ़ेद कफनों से भर गया। सैकड़ों खामोश वजूद जो सिर्फ फहद की तरफ देख रहे थे। उसी लम्हे स्याह साया बोला, वक्त पूरा हो गया। तमाम कफन पोश एक साथ आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज़ से ज़मीन लर्जने लगी, मगर उनमें से किसी के कदम ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सब फहद के गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए। फिर 4 कफन पोश आगे बढ़े। उन्होंने एक खाली जनाजा उठाया और 5वें कंधे की जगह खाली छोड़ दी। बाबा सलीम चीखा, फहद, अगर तुमने ये कंधा दे दिया तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए जिंदा लोगों से मिट जाएगा। मगर उसी लम्हे फहद के कानों में एक मानूस आवाज़ गूंजी, बेटा। ये उसकी माँ की आवाज़ थी जो कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे घर ले चलो। फहद की आंखों में आंसू आ गए। वो बेइख्तियार जनाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाबा सलीम उसे रोकता रहा, मगर जैसे ही फहद किसी के कब्जे में आ चुका था, जैसे ही फहद ने खाली जगह पर अपना कंधा रखा, पूरा कब्रिस्तान एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। हवा तूफान बन गई। तमाम कफन पोशों ने एक साथ अपने सर उठाए। पहली बार उनके चेहरे नजर आए और फहद की चीख निकल गई। उन सब के चेहरे एक जैसे थे। सबका चेहरा फहद का अपना चेहरा था। सैकड़ों फहद खामोशी से खड़े उसे देख रहे थे। अचानक
जनाजे के अंदर से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता कफन हटाया। उसके अंदर वही स्याह आंखों वाला जिन लेटा हुआ था। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया। उसने फात की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, अब सिर्फ एक रस्म बाकी है और अगली जुमेरात कोई और तुम्हारा जनाजा देखेगा। उसी लम्हे कब्रिस्तान की मस्जिद से फजर की अजान की पहली आवाज़ बुलंद हुई और वो स्याह जिन पहली बार गुस्से से चीख उठा। फजर की अजान की पहली सदा पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज़ सुनते ही स्याह जिन के चेहरे पर पहली बार खौफ ज़ाहिर हुआ। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और ऐसी चीख मारी कि कब्रिस्तान के दरख्त लरज़ उठे। तमाम कफन पोश एक साथ पीछे हट गए, मगर वो गायब नहीं हुए। वो खामोशी से फहद को घेरे खड़े रहे। बाबा सलीम बुलंद आवाज़ में कुरान की आयत पढ़ने लगे। जूं जूं तलावत की आवाज़ बुलंद होती गई, कब्रिस्तान की फ़िज़ा बदलने लगी। हवा में फैली बदबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। चिराग जो बुझ चुके थे वो एक एक करके दोबारा रोशन होने लगे, मगर स्याह जिन अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें फात पर जमी हुई थी। वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा, इसने मेरा जनाजा उठाया है, अब ये मेरा है। बाबा सलीम ने लरजती आवाज़ में कहा, फहद, इसके हाथ से अपना कंधा छुड़ा लो। फहद ने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर पत्थर रख दिया हो। वो हरकत भी नहीं कर पा रहा था। उसी लम्हे उसे अपनी मरहूम वालिदा की बात याद आई। जब वो बचपन में डर जाता था तो वो हमेशा कहती थी, खौफ को अपने दिल में जगह मत देना, अल्लाह पे भरोसा रखना। फहद ने आंखें बंद की, दिल ही दिल में दुआ मांगी और पूरी हिम्मत से एक झटका दिया। अचानक उसके कंधे पर लगी मिट्टी का निशान टूटकर जमीन पर गिर गया। ये देखते ही स्याह जिन गुस्से से धाड़ा। पूरा कब्रिस्तान लरज़ उठा। कब्रों से स्याह धुआं निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों चीखें एक साथ फिजा में गूंज रही हों, मगर अजान जारी थी, हर लफ्ज़ के साथ जिनकी ताकत कम होती जा रही थी। आखिरकार उसने आखिरी बार फहद की तरफ देखा और चीख कर बोला, ये खत्म नहीं हुआ। जब तक लोग मौत से डरेंगे मेरा जनाजा निकलता रहेगा। ये कहकर उसका वजूद स्याह धुएं में बदल गया और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के अंदर उतर गया। उसी लम्हे तमाम कफन पोश एक एक करके मिट्टी में गायब हो गए। चंद लम्हों में कब्रिस्तान दोबारा पहले जैसा खामोश हो गया। कई दिन बाद बाबा सलीम ने गांव वालों को सारी बात बताई। लोगों ने मिलकर उस बेनाम कब्र के गिर्द मजबूत दीवार बना दी। वहाँ हर जुमेरात कुरान खानी होने लगी और अजीब बात यह हुई कि उसके बाद कई बरस तक किसी ने आखिरी जनाजा नहीं देखा। लोगों ने समझा कि शायद ये खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन तकरीबन 1 साल बाद एक मुसाफिर रात के वक्त उस गांव से गुजरा। उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो पैदल चलते चलते कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। रात के 12:07 हुए। दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। मुसाफिर ने पलट कर देखा। 4 सफ़ेद कफन पोश एक जनाजा उठाए खामोशी से उसकी तरफ आ रहे थे और उस जनाजे के 5वें कंधे पर एक शख्स खामोशी से चल रहा था। जब वो करीब आया तो चांद की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी। वो फहद था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें जिंदगी नहीं थी। उसने मुसाफिर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और आहिस्ता से कहा, सिर्फ चंद कदम, बस एक कंधा दे दो। अगली सुबह कब्रिस्तान के करीब एक खाली गाड़ी मिली। दरवाज़ा खुला हुआ था, चाबियां अंदर पड़ी थी, मगर उस मुसाफिर का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। और नूरपुर के बूढ़े आज भी एक बात कहते हैं, अगर जुमेरात की रात कोई जनाजा खामोशी से तुम्हारे दरवाजे पे रुक जाए तो दुआ पढ़ो, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि बाज़ जनाजे दफन होने के लिए नहीं, अपना अगला कंधा ढूंढने के लिए निकलते हैं।